आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पार्ट 4 ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इसमें हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में कौन से पढ़ेंगे? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। चलो शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ योर ओपिनियन are two important geographical features of India. Why do you think they are important? इसका आंसर है geographical features of India mountain, plain, desert, peninsula, plateau, island, etc. इसके their importance कौन से importance है? पहला point, the Himalayas protect India from cold winds and foreign inventions. Second point, the northern plains are fertile and support agriculture. Third point, the Thar desert showcase adaptation and cultural richness in arid region. Fourth point, coastal areas promoted trade, fishing and tourism. Second question, what do you think India might have looked like if the Himalayas did not exist? Write a short note or sketch a drawing to express your imagination. इसका आंसर है, if the Himalayas did not exist, first है, northern Indian would face extremely cold winds from Central Asia. Rivers like Ganga may not originate, affecting culture. Third point, less natural protection from inventions. Fourth point, last point है ये हमारा fourth, possible change with more desert like condition in the north. पहले क्वेश्चन में क्या बताया था? पहले क्वेश्चन में जोग्राफिकल फीचर्स बताए थे और इम्पोर्टेंस बताया था। सेकंड क्वेश्चन में हमने बताया हिमालय के बारे में, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन अब हम पढ़ते हैं, India has been called a mini continent based on what you have read. Why do you think this is so? पहला point, it has all major landforms, mountains, plain, plateaus, desert, coast and islands. Second point, diverse climatic condition across different region, rich variety of flora and fauna. Fourth point, multi languages, cultures and tradition exist together. ये हमारे 4 पॉइंट थे जो इंडिया को बताते हैं, जो मिनी कॉन्टिनेंट बताते हैं, ठीक है। अगला फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फॉलो वन ऑफ इंडियंस बिग रिवर्स फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स टू वेयर it meets the ocean. What are the different ways in which people might utilize this river along its journey? Discuss in groups in your class. आंसर है इसका, यूटिलाइजेशन ऑफ रिवर फ्रॉम सोर्स टू सी। पहला पॉइंट, सोर्स, रिलीजन वर्शिप एंड साइंटिफिक टूरिज्म। Second point, middle course, irrigation of agriculture and drinking water supply. Third point, flowing towns, industrial use and domestic water uses. Fourth point, delta region, fishing, agriculture and transport. Fifth point, mouth, ports and marine bio डाइवर्सिटी सपोर्ट। इस क्वेश्चन में हमें बताना था यूटिलाइजेशन ऑफ रिवर फ्रॉम सोर्स टू सी के बारे में, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन अब हम पढ़ते हैं, व्हाई इज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया रेफर्ड टू एज अ पेनिनसुला प्लेट्यू? इसका आंसर है, फर्स्ट पॉइंट, इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट, लाइज ऑन अ स्टेबल एशियन लैंडमास और ब्लॉक। थर्ड पॉइंट,
formed by volcanic and tectonic activity over time. Fourth point, made up of hard crystalline rocks and rich in minerals. Fifth point, elevated flat surface forms the Deccan and छोटा नागपुर प्लेट्यू. इस क्वेश्चन में हमने बताना था नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के बारे में. सिक्स क्वेश्चन, विच UNESCO heritage site mentioned in this chapter did you find more interesting? Write a short paragraph to describe what about it is interesting. Answer, interesting UNESCO heritage site from the chapter example Sundarban. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट. सेकेंड, home to Royal Bengal tiger and other endangered species. Third point, acts as a natural barrier against cyclones and floods. Fourth point, unique ecosystem with high biodiversity. Okay. सिक्स क्वेश्चन में बताना था इंटरेस्टिंग हेरिटेज साइट का एग्जाम्पल, जैसे सुंदरबन के बारे में बताया हमने फीचर्स इसमें. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, लुक एट द टू मैप्स ऑफ इंडिया, फिजिकल एज वेल एज पॉलिटिकल, गिवन एट द एंड ऑफ दिस बुक. आइडेंटिफाई द प्लेस यू आर एट नाउ. विच फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया वुड यू use to describe its location? Answer, if you live in Himachal Pradesh mountain region. First point, lies in the Himalayan mountain range with high altitudes. Second point, landforms include snow-capped peaks, valleys and glaciers. Third, cold climate with snowfall in winters. Fourth, natural barriers like mountains influence defense and climate. ओके, ये तो हमने पढ़ा था हिमाचल प्रदेश माउंटेन रीजन का. अब हम दूसरा पढ़ेंगे, इफ़ यू लिव नियर द गंगा रिवर इन उत्तर प्रदेश नॉर्दर्न प्लेन्स में. फर्स्ट पॉइंट, लोकेटेड इन द फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म बाय रिवर डिपॉजिट्स. Second point, flat land with alluvial soil ideal for wheat, rice and sugarcane farming. Ganga river provides drinking water, irrigation and transport. Fourth point, densely polluted with important culture and religious sites. ये हमारा दूसरा पॉइंट है अगर आप उत्तर प्रदेश नॉर्दर्न प्लेन के पास हो. ठीक है. अगला क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अक्रॉस इंडिया. दे आर अडेप्टेड टू लोकल कंडीशन. डू अ क्लास प्रोजेक्ट. गैदर डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड. हिंट, ड्राइंग वेजिटेबल व्हेन दे आर इन सीजन फॉर यूज ड्यूरिंग द ऑफ सीजन. इसका आंसर हम पढ़ते हैं. फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स इन डिफरेंट रिलीजन. ड्राइंग वेजिटेबल फ्रूट्स इन सनलाइट कॉमन इन राजस्थान तमिलनाडु में. कहाँ पे है? राजस्थान और तमिलनाडु में. पिकलिंग पॉपुलर अक्रॉस इंडिया इन डिफरेंट फॉर्म्स. स्मोकिंग फिश मीट यूज्ड इन नॉर्दर्न, ईस्ट एंड coastal regions. Fermentations for foods like idli, dosa batter in South India. Use of jaggery or sugar syrup in sweets for longer shelf life. इस क्वेश्चन में हमने बताना था कौन से प्रिजर्वेशन टेक्निक है और कहाँ पे डिफरेंट रीजन में. ठीक है. अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम. डिस्पाइट हैविंग सच डिफरेंट रीजन, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, प्लेन्स
coasts, India remain one country. How do you think our geography has helped united people? इसका आंसर पढ़ते हैं. पहला पॉइंट, रिवर कनेक्ट डिफरेंट रीजन इकोनॉमिकली एंड कल्चरली. सेकेंड पॉइंट, माउंटेन passes allowed historical trade and culture exchanges. Third, monsoon affects all, creating shared agriculture cycles. Fourth, festivals linked to geography related across region. आई होप आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन समझ आ गया हो. आगे हम पढ़ेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. पहला क्वेश्चन, हाउ आर द सैंड ड्यूज फॉर्म. सैंड ड्यूज कैसे बनते हैं? द सैंड ड्यूज आर फॉर्म व्हेन द विंड शिफ्ट्स एंड शेप द सैंड इनटू हिल लाइक फॉर्मेशन. सेकेंड, व्हाट इज अ प्लेट्यू. प्लेट्यू क्या होता है? अ प्लेट्यू इज अ फ्लैट एरिया ऑफ लैंड दैट राइज अबव the surrounding land with steep sides. Third, name any two important physical features of India. ठीक है, इसका आंसर है फर्स्ट पॉइंट, द हिमालयस माउंटेन रेंज. सेकेंड, द नॉर्दर्न प्लेन्स फर्टाइल एग्रीकल्चर रीजन. फोर्थ क्वेश्चन, नेम एनी टू कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया. केरला एंड तमिलनाडु. ये हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे. आगे हम पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. पहला क्वेश्चन, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड. डिफरेंस बताना है हमने अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के अंदर और लक्षद्वीप के अंदर. लक्षद्वीप आइसलैंड. पहला पॉइंट, लक्षद्वीप आइसलैंड आर लोकेटेड इन द अरेबियन Sea and Andaman and Nicobar Island are located in the Bay of Bengal. Lakshadweep Island has 36 islands and the Andaman and Nicobar Islands has 500 large and small islands. Third point, Lakshadweep Islands has coral islands and Andaman and Nicobar Island has volcanic islands. ये हमारा डिफरेंस था किसके बीच में? लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के अंदर. सेकेंड क्वेश्चन है, राइट एनी थ्री डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स. फर्स्ट पॉइंट, वेस्टर्न घाट्स आर कॉन्टिन्यूस एंड ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन. सेकेंड, वेस्टर्न घाट्स आर हायर इन एलिवेशन. और थर्ड आपका वेस्टर्न घाट्स रिसीव मोर रेनफॉल. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट रोल डू माउंटेन्स प्ले इन शेपिंग इंडियंस ज्योग्राफी. इसका आंसर है सोर्स ऑफ रिवर्स लाइक गंगा एंड यमुना. सेकेंड पॉइंट, एक्ट एज नेचुरल बैरियर्स अगेंस्ट इन्वेंशंस एंड कोल्ड विंड्स. थर्ड पॉइंट, सपोर्ट टूरिज्म एंड religious pilgrims. Fourth, store snow and regulate climate. Fifth, provide forest and medical plants. ठीक है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे. अब हम पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. राइट द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द डेल्टा. फर्स्ट पॉइंट, डेल्टा आर द लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड एट द mouth of a river. It is formed when river deposits sediments into a larger body of the water such as an ocean, a lake or another river. Third point, gradually these sediments build up forming a triangular or fan-shaped area. Fourth, the fertile delta like Godavari, Krishna, Kaveri and Mahanadi rivers make the land ideal for farming. I hope आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी समझ आ गया हो. हमने इस पार्ट में पढ़ा है एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स में हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पढ़ा है. आई होप आपको इतना समझ आ गया हो. थैंक यू.